Hello dear students, welcome to my channel. Today we are going to study this poem from your book. This is the fourth poem, Amanda, and this is from your book First Flight. Alright, here you can see Amanda title is given with an exclamation mark. Why so? पोएट ने ऐसा क्यों किया है कि अमेंडा टाइटल को एक एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ रखा है? इसका आंसर हम चैप्टर एंड में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोम. Every child feels that she or he is controlled and instructed not to do one thing or another. So आप भी देखो, हर बच्चे को ऐसा लगता है कि हर एक चाइल्ड जो होता है उसे इंस्ट्रक्शंस दी जाती है तो हाउ टू लिव इन अ सोसाइटी और देयर आर a few set of rules for living in a society to behave properly. So that's why everyone can feel that his or her freedom is curtailed. Curtail means decrease. उसकी freedom को कम कर दिया गया है. वो जो भी चाहता है वो नहीं कर सकता. He is not able to do or she is not able to do whatever she or he wants. Okay, so Amanda भी एक ऐसी ही लड़की है. Amanda is a girl who is 10 or 11 years old, and she is being constantly instructed or controlled by her parents. That's why she is frustrated and she imagines herself in a different kind of life. So अमेंडा की जो इमेजिनेशन है वो आप देखोगे ब्रैकेट्स में दी हुई है, और इससे पहले की जो लाइंस है, जो भी स्टैंजा है, वो आपको इसके पेरेंट्स या फिर इसकी मदर इसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही है, वो बताया गया है. सो लेट्स स्टार्ट विद द लाइंस ऑफ द पोम. Don't bite your nails, Amanda. Don't haunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. तो यहाँ अमेंडा को क्या बताया जा रहा है कि हाउ टू सिट अप प्रॉपरली, हाउ टू सिट प्रॉपरली, हाउ टू बी वेल सोफेस्टिकेटेड गर्ल. सो इस तरीके से अमेंडा को एक लिटिल गर्ल है जो है उसे उठने बैठने के तरीके के बारे में बताया जा रहा है. उसे ये बताया जा रहा है कि नाखून नहीं चबाने चाहिए. सो डोंट, उसकी मदर उसे स्कोल्ड करते हुए, उसे डांटते हुए ये सिखा रही है, डोंट बाइट योर नेल्स. शी इज इंस्ट्रक्टेड नॉट टू बाइट हर नेल्स एंड डोंट हॉन्च योर शोल्डर. हेयर हॉन्च मीन्स बेंड डाउन. Haunch means bend down. You can see in this slide, haunch means bend. Stop that slouching and sit up straight. Again, सिटिंग पोस्चर के बारे में उसकी मदर उसे इंस्ट्रक्शंस दे रही है टू हाउ टू सिट प्रॉपरली. यू कैन सी द मीनिंग ऑफ स्लाउचिंग इज गिवन हेयर. स्लाउचिंग मीन्स सिटिंग इन अ लेजी वे. तो जब भी हम बैठते हैं, जब भी वी आर इन अ कंफर्ट पोजीशन, वी स्लाउच. हम अक्सर क्या होते हैं, एक लेजी तरीके से बेंड होके बैठते हैं जब भी हम थके होते हैं या हम जब भी आराम से बैठना चाहते हैं. सो शी वॉज स्लाउचिंग एट दैट टाइम. सो हर मदर स्टॉप्ड हर एंड से स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, अमेंडा. Okay, so this was the line which was given in the book for her mother. In the next stanza, you can see the lines are given in the bracket. So we can say that this is the imagination. This is the imagination. This is the imagination of Amanda, and that's why it is given in the bracket. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. So Amanda imagines herself as a mermaid and she is drifting blissfully. Drifting means moving here and there. Drifting means carried slowly by the water. मतलब कि जब भी पानी में कोई चीज़ आप देखते हो तो वो पानी के बहाव के साथ साथ अपने आप ही वहाँ पे मूव करती है. सो आप इसको मूविंग स्लोली भी कह सकते हो या कैरिड स्लोली बाय द वाटर. She is drifting blissfully. Blissfully means happily, and she is the sole inhabitant. What's the meaning of sole inhabitant? Sole inhabitant means a single resident. ठीक है, सिंगल रेजिडेंट मतलब कि उस पूरे के पूरे ओशन में अमेंडा जो है वो अकेली है. ठीक है, रेजिडेंट. Amanda is the single resident in the whole sea. She is the soul. Soul means only. There is a languid. Languid means relaxed sea. Languid. Languid means relaxed. So there is what is Amanda's imagination? There is a languid emerald sea. Here you can see emerald. Emerald means
green in color. Green in color. Ocean का color कैसा है? Emerald sea. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me. A mermaid. Mermaid, you can see this mermaid is a creature, is a fantasy creature, और it is an, अक्सर हम इसे कैसे देखते हैं? फेरी टेल में हम mermaid को देखते हैं, ठीक है, जिसकी आधी बॉडी कैसी होती है? अ फिश, एंड द हाफ पार्ट ऑफ बॉडी इज अ ह्यूमन. ओके, मरमेड की बॉडी आधी फिश की होती है और आधी बॉडी कैसी होती है? एक ह्यूमन की होती है. सो देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. So Amanda is in a relaxed ocean, and the color of the ocean is green, where she is the single resident, she is the single inhabitant there, and she is a mermaid. She's a mermaid, she's a creature that is called mermaid, and she is moving here and there happily. Okay, this is the meaning of this line, these lines from your book. Coming to the second page. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. So did you finish your homework? Did you tidy your room? इन दोनों लाइंस को पढ़ के हमें ये ऐसा पता चल रहा है कि अमेंडा को रिकॉल कराया जा रहा है उसकी ड्यूटीज. What are her duties and what are her responsibilities? रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अमेंडा की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कि उसे प्रॉपर होमवर्क करना है, प्रॉपर रूम क्लीन रखना है, एंड उसके शूज़ को भी उसे क्लीन करना है. तो अमेंडा की मदर उसे उसकी ड्यूटीज याद दिला रही है. डिड यू फिनिश योर होमवर्क, अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम? शी इज रिकॉलिंग हर ड्यूटीज टू अमेंडा को उसकी ड्यूटीज याद दिलाई जा रही हैं. सो इस बात पे अमेंडा की इमेजिनेशन क्या होती है? अमेंडा क्या इमेजिन कर रही है? अमेंडा इतनी फ्रस्ट्रेट है दैट शी कैन इमेजिन हरसेल्फ एज एन ऑर्फन. ऑर्फन मीन्स विदाउट पेरेंट्स. ऑर्फन मीन्स without parents. A child who doesn't have parents or any guardian, guardian नहीं कह सकते, parents कहेंगे. So any child who doesn't have any parent, so that child will be called as orphan. Without parents. Alright, so Amanda imagines herself as an orphan. I am an orphan roaming the street. Hey, I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. I can say that this line or this stanza is very, very important for your exam point of view because of the last line. The silence is golden, the freedom is sweet. You may be asked the poetic device from this line. So let's discuss what's the meaning first, and then we'll discuss the poetic devices also. I am an orphan roaming the street. Roaming means wandering here and there without an aim. जब भी आप किसी aim के बिना इधर उधर move करते हो, that is called roaming in the street. Amanda is an orphan and she is moving, she is wandering here and there in the street. She patterns soft dust. जब अमेंडा स्ट्रीट में वॉक कर रही है, she pattern, उसके पैरों के निशान कहाँ पड़ रहे हैं? On the in the soft dust with her hushed bare feet. Hushed means silent. Hushed means silent. Silent. Bare feet. Bare feet का मतलब होता है without footwear. Without footwear. She's bare feet, so it means she's without footwear. She's without any footwear. उसने कोई भी footwear नहीं पहना है. That's why she patterns soft dust and with her hushed and bare feet. Here the silence is golden, the freedom is sweet. The silence is golden. I'll make clear that what is the meaning of this line. The silence is golden and freedom is sweet. The meaning of this sentence is, अभी तक अमेंडा ने एक्सपीरियंस नहीं किया था साइलेंस अपनी लाइफ में. ऑलवेज हर मदर स्कोल्डेड हर and
इंस्ट्रक्टेड हर, अमेंडा की मदर हमेशा ही उसे स्कोल्ड करती रहती थी, उसे डांटती रहती थी और उसे इंस्ट्रक्शंस देती रहती थी. बट हेयर अमेंडा इज इन अ साइलेंट एनवायरनमेंट, सो द एक्सपीरियंस ऑफ दिस silence is very valuable. Okay, very valuable है, that's why it is golden. The silence is golden. And Amanda never feels freedom in her life. वो कभी भी अपनी लाइफ में फ्रीडम फील नहीं करती है, दैट्स वाई उसने फर्स्ट टाइम फ्रीडम को एक्सपीरियंस किया, एंड दिस फ्रीडम टेस्टेड स्वीट टू हर. उसे ये फ्रीडम कैसी लगी, स्वीट लगी. जब उसने फर्स्ट टाइम फ्रीडम को टेस्ट किया, एक्सपीरियंस किया, इट इज स्वीट इन द मीन्स इट इज वेरी प्लेजरफुल, और यू कैन से प्लेजर गिविंग थिंग. फ्रीडम एक ऐसी चीज है जो हमें खुशी देती है, एक हैप्पी फील देती है, दैट्स वाई द फ्रीडम इज स्वीट. एंड साइलेंस गोल्डन क्यों है, बिकॉज इट इज वैल्यूएबल, एंड फ्रीडम इट इज अ आई कैन से pleasure giving thing, you can say, that's why it is sweet. Okay, next, coming to the next stanza of the poem. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you? Here you can see that don't eat that chocolate. Remember your acne. Amanda is being told फॉर आउटर ब्यूटी. अमेंडा को किस चीज के बारे में बताया जा रहा है, फॉर आउटर ब्यूटी. इट मीन्स कि उसके फेस, अगर फेस उसका अच्छा रहेगा तो वो ब्यूटीफुल होगी और सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करेगी. सो डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा. उसकी मदर उसे ये ध्यान रखने को कह रही है. विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम टॉक स्पीकिंग टू यू अमेंडा. सो ये लास्ट वाली लाइन जो है, इस लाइन से हमें ये बिल्कुल क्लियर है दैट अमेंडा इज इग्नोरिंग हर पेरेंट्स, इग्नोरिंग हर पेरेंट्स. अमेंडा अपने पेरेंट्स को इग्नोर कर रही है, दैट्स वाई उसकी मदर फ्रस्ट्रेट हो रही है उस पर और उसे डांटते हुए कह रही है, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू. जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो क्या तुम मेरी तरफ देख सकती हो, विल यू प्लीज लुक एट मी. सो अमेंडा इज इग्नोरिंग हर पेरेंट्स, दैट्स वाई हर मदर इज बीइंग फ्रस्ट्रेटेड. Amanda is in her imagination world, in his fantasy world. She imagines herself as Rapunzel. I am Rapunzel, I have not care. Life in tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. She is Rapunzel. Rapunzel भी एक character है, it's a creature, and she has अमेंडा. यहाँ पे रपंजल की स्टोरी आपको बता देती हूँ. अमेंडा, रपंजल एक क्रिएचर है जिसको कि एक बिग टावर में कैद करके रखा गया था. बट रपंजल के बिग, सॉरी, बिग यहाँ वर्ड नहीं यूज करेंगे, यहाँ वर्ड यूज करेंगे लॉन्ग. लॉन्ग एंड ब्राइट हेयर थे. ब्राइट मीन्स गोल्डन हेयर थे. दैट्स वाई यहाँ पे रपंजल ने क्या किया, अपने हेल्प खुद की और उसने गोल्डन और ब्राइट हेयर को अब टावर से नीचे किया और उसकी रस्सी बना के उसकी मदद से वो टावर से निकल के चली गई, फ्री हो गई. सो यहाँ पे रपंजल की स्टोरी के साथ कनेक्ट करके पोएटस ने यहाँ पे अमेंडा की इमेजिनेशन को बताया है. अमेंडा सेज दैट शी इज रपंजल एंड शी डजंट हैव एनी केयर फॉर एनीवन. शी लिव्स इन टावर. लाइफ इन टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर. अमेंडा कहाँ रहना चाहती है, अमेंडा टावर में रहना चाहती है. वो कभी भी टावर से बाहर नहीं रहना चाहती, बिकॉज द लाइफ इन टावर इज ट्रैंक्विल. ट्रैंक्विल मीन्स काम. काम मीन्स पीसफुल. पीसफुल. द लाइफ इन टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर. रेयर का मतलब है यूनिक. रेयर मीन्स unique. The life in tower is tranquil and rare. I will certainly never let down. Means she is sure. Certainly means she is sure that she will never let down her bright hair. Okay. Next stanza. Stop that sulking at once, Amanda. You are so always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. तो यहाँ पे उसकी मदर उसे उसके इग्नोरेंस पे उसे डांट रही है और क्या कह रही है, दैट स्टॉप दैट सल्किंग. सल्किंग का मतलब होता है गुस्सा हो जाना,
एंग्री हो जाना, मुंह फुला लेना। सो इन वर्ड्स को आप सल्किंग से कनेक्ट कर सकते हो। सल्किंग मीन्स she is in a bad mood, she is in a anger. So that's why her mother is saying that not to be angry on her, not to be always so moody. So you are always so moody. Moody means in a bad mood. अमेंडा अक्सर ही हमेशा इरिटेटेड रहती है, बैड मूड में रहती है। दैट्स वाई हर मदर इज सेइंग दैट नॉट टू बी इन अ बैड मूड ऑलवेज। एनी वन वुड थिंक, अगर अमेंडा को हमेशा कोई बुरे मूड में देखेगा तो क्या कहेगा कि अमेंडा की मदर उसे हमेशा नैक्ट करती रहती। नैक्ड मीन्स डिस्टर्ब क्या हो सकता है, डांटना हो सकता है। सो she says that anyone would think that I nagged at you, Amanda. Okay, so there is the end of this poem, and this poem is written by Robin Klein. रॉबिन क्लीन के द्वारा लिखी गई है ये पोम, और आप इसके मीनिंग को समझ चुके होंगे, एक्सप्लेनेशन को समझ चुके होंगे। लेट्स डिस्कस दी पोएटिक डिवाइसेस। सो फर्स्ट पोएटिक डिवाइस है एनाफोरा। एनाफोरा का यूज कहाँ हुआ है मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट स्लाइड अगर हम देखते हैं, यहाँ पे आप देखो, डोंट 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 डोंट, ठीक है। स्टार्टिंग के वर्ड्स सेम है, ठीक है, स्टार्टिंग के वर्ड्स सेम है, दैट्स वाई दिस इज एनाफोरा, ठीक है। एनाफोरा किसे कहते हैं, जब स्टार्टिंग के वर्ड्स, लाइंस की स्टार्टिंग सेम वर्ड से होती है, ठीक है। नेक्स्ट, मेटाफर। मेटाफर का यूज कहाँ हुआ है, यूज ऑफ वर्ड एमरल्ड, ठीक है। एमरल्ड सी जहाँ पे यूज हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, मेटाफर कहेंगे। फॉर ग्रीन कलर ऑफ सी बीइंग सिमिलर टू द कलर, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है सी के कलर को एमरल्ड के कलर से। एमरल्ड इज अ जेम, एक स्टोन होता है जिसे एमरल्ड कहते हैं, जिसे हम पन्ना कहते हैं, जिसे हाथ में पहना जाता है, ठीक है। रेपिटेशन वर्ड कहाँ यूज हुआ है, आप अगर पोएम में देखो तो अमेंडा अमेंडा बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है। जैसे कि अगर फर्स्ट स्टैंजा में देखो अमेंडा अमेंडा, सो ये जो रेपिटेशन है, ये जो बार बार अमेंडा वर्ड का यूज है, इसे ही हम रेपिटेशन कहेंगे। डिफरेंस होता है एनाफोरा में और रेपिटेशन में। एनाफोरा में क्या डिफरेंस होता है कि ये स्टार्टिंग के वर्ड रिपीट होते हैं, और रेपिटेशन क्या होता है कि ये लाइंस के बीच में भी वर्ड यू रिपीट हो सकते हैं। Coming to the next poetic device, that is alliteration. Alliteration means consonant sound. जैसे कि consonant sound अगर repeat हो रहा है, stop that slouching and sit up straight. So here S, S and here S and S repeated. ठीक है, you can say S साउंड रिपीट हो रहा है, हमें ये ध्यान रखना है कि कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, तो वहाँ पे एलिट्रेशन होता है, ठीक है। S साउंड इज बीइंग रिपीटेड। एल्यूजन का मतलब क्या है, एल्यूजन मीन्स मरमेड। यहाँ पे कोई भी क्रिएचर, वेल नोन इमेजरी क्रिएचर अगर हो तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे कि हमारा एल्यूजन पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, ठीक है। कमिंग टू दी नेक्स्ट स्टैंजा, जहाँ पे डिड यू फिनिश योर होमवर्क, डिड यू टाइडी योर रूम, तो यहाँ पे भी एनाफोरा का यूज है, डिड यू फिनिश, डिड यू टाइडी, ठीक है। रेपिटेशन अमेंडा। मेटाफर यूज हुआ है, साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंस इज सेड टू बी ग्लोरियस लाइक गोल्डन कलर, ओके। ये देखो, द साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट। यहाँ इस लाइन में आप ध्यान रखना, इस लाइन में आपको मेटाफर यूज करना है, ये लाइन मेटाफर यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। मेटाफर पोएटिक डिवाइस है यहाँ पे। फ्रीडम इज स्वीट। एल्यूजन अगेन, फेरी टेल कैरेक्टर रपंजल यूज किया है, दैट्स एक फेमस क्रिएचर यूज किया, एल्यूजन है, और अमेंडा वर्ड को रिपीट किया गया इन द लास्ट स्टैंजा। सो हाँ, मैंने ये कहा था कि हम ये देखेंगे अमेंडा टाइटल को एक्सक्लामेशन मार्क के साथ क्यों रखा गया है। देखो, एक्सक्लामेशन मार्क जब भी यूज होता है तो वो क्या करता है, वो आपके सडन इमोशन को शो करता है। सडन इमोशन, सडन इमोशन को शो करने वाला मार्क कौन सा है, एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेशन मार्क। और यहाँ पे अगर अमेंडा के साथ एक्सक्लामेशन मार्क है, इट शोज दी
frustration or irritation of her parents. All right, this is the answer of this question कि अगर अमेंडा के वर्ड के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क है तो पोएम पढ़ के हमें ये लग रहा है कि ये एक्सक्लेमेशन मार्क ये शो कर रहा है कि ये अमेंडा के पेरेंट्स उसे जो बार बार फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन के साथ बातें बता रहे हैं वो शो कर रहा है. सो इट शोज द फ्रस्ट्रेशन एंड इरिटेशन ऑफ अ पेरेंट्स. So dear students, this is the end of this video. Thanks for watching. Please like and subscribe the channel. Thanks.